السلام علیکم۔ لکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ مقابل تیمیم رائٹر قسط نمبر 9۔ صنم خان جب اپنے علاقے میں داخل ہوتے ہی اس نے شکر ادا کیا۔ جب وہ حویلی میں داخل ہوئی تو اس کے والدین اور انم اس کی اچانک آمد پر حیران ہوئے تھے، لیکن وہ خوش بھی بہت تھے اپنی بیٹی کو یہاں پا کر۔ سمان خان نے تو باقاعدہ اسے سینے سے لگایا تھا۔ شیریں نم آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ان کے بیچوں بیچ بیٹھی ان کے سوالات کے جواب دے رہی تھی۔ شیریں نے جب ان لوگوں کے بارے میں پوچھا تو صنم نے ان کی تعریفوں کے پل باندھ دیے کہ وہ سب لوگ بہت اچھے تھے اور اس کا بہت خیال رکھتے تھے، باسبائے شابان خان کے کہ وہی انسان تھا جو اس سے نفرت کرتا تھا۔ باقی سب لوگوں کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ یہ سن کر وہ دونوں مطمئن ہو گئے تھے۔ حال احوال کے بعد وہ سیدھی استقبال چلی آئی بہادر کو دیکھنے۔ بہادر کو ٹھیک دیکھ کر صنم بہت خوش ہوئی۔ اب وہ اس سے پیار کر رہی تھی۔ وہ 3 دن تک آرام کرتی رہی اور پھر فرصت ملتے اپنے مشغلوں میں لگ گئی۔ صنم خان کے جانے کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ اس کے جانے کے دوسرے ہی دن ابرار اور زبیدہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ شہر اپنے گھر چلے گئے۔ حویلی میں جیسے سناٹے کا راج تھا، ہر طرف خاموشی ہی خاموشی تھی۔ تینوں بہنیں بہت بور ہو رہی تھیں۔ یہ تنہائی نے کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی۔ پہلے تو گل رخسار اور دانش ہوتے تو وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا، لیکن اب حویلی میں خاموشی نے بسیرا کر لیا تھا۔ احتشام خان، شبان خان، سنبل اور امرینا تیمور کے اس اقدام سے اس قدر ناراض تھے۔ تیمور بہت چپ چپ رہنے لگا تھا۔ اس وقت بھی وہ اپنے کمرے میں خاموش سا بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں صنم کا موبائل تھا۔ وہ گیلری کھولے صنم خان کی ایک کے بعد ایک تصویر کو زوم کر کے دیکھتا جا رہا تھا۔ وہ صنم کی تصویروں کو دیکھنے میں اس قدر منہمک تھا کہ دروازہ کھول کر سنبل کی آمد کی بھی اسے خبر نہ ہوئی۔ کیا کہہ رہا ہے؟ سنبل کی اچانک آواز سن کر وہ چونکی اور جلدی سے موبائل آف کرتا اپنے بیڈ پر رکھ دیا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، تم اس وقت یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ آج تم بھی کھانا نہیں کھائے گا؟ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ کیوں بھوک نہیں ہے؟ وہ لڑکی جب سے گیا ہے ہم دیکھ رہے ہیں نا، نہ تم ٹھیک سے کھانا کھا رہا ہے نہ ہی سو رہا ہے۔ تم خود کو کیوں تکلیف دے رہا ہے؟ تم کو اس طرح سے دیکھ کر ہم کو بھی تکلیف ہوتا ہے اور ہمارا حلق سے بھی کھانا نہیں اترتا۔ کیا اگر میں کھانا نہیں کھاتا تو تم بھی نہیں کھاتی؟ نہیں، بے وقوف لڑکی، میں نے کتنی بار کہا ہے میرے انتظار میں خود کا بھوکا مت رکھو، لیکن تم سمجھتی نہیں۔ کیا کرے ہم؟ تم کھانا نہیں کھاتا تو ہمارا بھوک بھی مر جاتا ہے۔ میری خاطر خود کو بھوکا مت رکھو، چلو جاؤ جا کر کھانا کھاؤ۔ نہیں، ہم تب تک نہیں کھائے گا جب تک تم نہیں کھائے گا۔ اس کی ضد پر وہ مسکرایا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم کھانا لگاؤ، میں آ رہا ہوں، پھر مل کر کھاتے۔ سچ میں؟ سنبل خوش ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، ہم ابھی لگاتا ہے کھانا، جلدی سے آنا۔ ہاں تم جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ سنبل فوراً سے وہاں سے بھاگ گئی۔ پیچھے تیمور خان نے مسکراتے ہوئے دوبارہ سے صنم خان کا موبائل اٹھا لیا۔ وہ صنم خان کی ایک تصویر کو گہری دلچسپی سے دیکھتے ہوئے ہولے سے مسکرا کر بالا، اب تمہارے بغیر گزارا ممکن نہیں ہے سردار کی بیٹی۔ جب سے تم گئی ہو اپنے ساتھ میرا چین اور سکون بھی لے گئی ہو۔ اب تمہیں حاصل کرنا میری ضد بن چکی ہے۔ 1 ہفتہ ہو چکا ہے، نہ میں ٹھیک سے کھا رہا ہوں نہ ہی سو رہا ہوں۔ اب آ جاؤ جلدی سے تاکہ مجھے سکون مل جائے۔ تیمور صنم خان کی تصویر سے باتیں کرتا ہنس دیا۔ تمہارے آنے سے یہ میری زندگی میں چین اور سکون ملے گا۔ تیمور خان نے بہت سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا۔ رات کھانے کی میز پر اپنا فیصلہ سنا کر اس نے سب کو ششدر کر دیا۔ کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب تیمور خان کہہ رہا ہے۔ تاجی میں نے فیصلہ کیا کہ میں سردار خان زمان خان کے ساتھ اس دشمنی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہے؟ نہیں، میں نے بہت سوچ سمجھ کر سوچ بچار کے ساتھ یہ فیصلہ لیا۔ تم ایسا کیوں کر رہا ہے تیمور خان؟ کیونکہ میں اس کی بیٹی صنم کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تیمور خان نے سب کے سروں پر جیسے بم دھماکہ کیا تھا۔ شبان خان اور امرینا حیرت اور بے یقینی سے سامنے بیٹھے تیمور خان کو دیکھنے لگے، جبکہ کھانا کھاتی سنبل کے ہاتھ سے نوالا چھوٹ کر پلیٹ میں جا گرا۔ احتشام خان غصے سے دھاڑے، کیا دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ کیسا بات کرتا ہے تو؟ ہم ایسا ہرگز بھی نہیں ہونے دیں گے تیمور خانہ۔ لیکن میں ایسا ہی کروں گا تاجی، اور مجھے یہ سب کرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ میں شادی کروں گا تو صرف اور صنم خان سے، ورنہ کسی سے بھی نہیں۔ تیمور خان نے اپنا حتمی فیصلہ سنایا۔ سنبل روتے ہوئے بولی، تیمور خان ہمارا منگنی ہو گیا ہے، تم ایسا باتیں کیوں کر رہا ہے؟ ہاں جانتا ہوں، لیکن میں شادی صنم خان سے کرنا چاہتا ہوں۔ سنبل پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ شبان غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تیمور خان تم ہمارا بچی کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے۔ کیسی ناانصافی؟ میں نے کیا کیا ہے؟ تیمور کندھے اچکاتے لاپرواہی سے بولا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں صنم سے شادی کروں تو اس میں کیا حرج ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی بیٹی کی شادی مجھ سے ہو جائے تو کوئی بات نہیں، میں 2 شادیاں کر لوں گا۔ تیمور ہنستے ہوئے بولا، مجھ میں صلاحیت ہے 2 بیویاں سنبھالنے کی۔ اگر آپ یہی چاہتے تو میں آپ کی بیٹی سے بھی شادی کر لوں گا۔ آپ کو منظور ہے؟
शबान खान कुछ ना बोला, बस सबसे अपनी मुट्ठियाँ भींच गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर तैमूर खान कैसे इतना बदल गया। कल तक वो जिस लड़की की इज्जत और जान के पीछे हाथ धोकर पड़ा था, अब वो सब के खिलाफ जाकर उससे शादी करना चाहता था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। तैमूर अब माँ की तरफ मुतवज्जो होते हुए बोला, मोरे, आप ज़मान खान की हवेली जाएंगी मेरा रिश्ता लेकर? शहनाज की जगह एहतशाम खान बोले, हरगिज़ नहीं, कोई भी यहाँ से इस हवेली में कदम नहीं रखेगा। वो हमारा बच्ची और हमारे बच्चे का कातिल है, और तुम चाहता है कि हम इससे रिश्तेदारी बना लें? ऐसा कभी नहीं होगा तैमूर खान। और तुम सब लोग कान खोल कर सुन लो, अगर इधर से भी कोई भी हवेली में से गया तो हमारा इसके साथ रिश्ता नाता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और दोबारा इस हवेली में कदम नहीं रखेगा। दाजी का फैसला सुनकर तैमूर गुस्से से उठ खड़ा हुआ। ठीक है दाजी, फिर आप भी सुन लें। आप लोगों में से अगर कोई भी वहाँ नहीं जाएगा तो फिर मैं खुद ही वहाँ चला जाता हूँ अपना प्रपोज़ल लेकर। मुझे अब किसी की भी मदद की ज़रूरत नहीं है, जो करना होगा मैं खुद कर लूँगा। उसने ड्राइवर को गाड़ी तैयार करने का हुक्म दिया और ख़ुद अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर के बाद वो तैयार श्यार सा खुशबुएं बिखेरता कमरे से बाहर निकला। सुंबल नम आँखों से उसे ही देख रही थी। तैमूर ने एक निगाह इस पर डाली जो रो रही थी, लेकिन उसे जैसे इसके आंसुओं से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। वो उसे नज़रअंदाज करता बाकी सबको देखता वहाँ से निकलता चला गया। सबने महसूस किया था कि आज वो बहुत खुश था। वो जो ही गाड़ी में बैठ रहा था तभी सुंबल भाग के उसके पास और इसका बाजू दबोचते हुए बोली, खुदा के लिए ऐसा मत करो तैमूर खान, हम मर जाएगा तुम्हारे बगैर। तैमूर का इसका हाथ झटकते हुए नखवत से बोला, कोई किसी के लिए नहीं मरता सुंबल बीबी, बस ये डायलॉग्स तक ही महदूद रह जाता है। चलो अब छोड़ो, मुझे जाने दो। नहीं, हम तुमको नहीं जानेगा ना, वरना तुम इससे शादी करके आ जाएगा। वो पागलों की तरह इसके बाजों से पकड़े उसे जाने से रोक रही थी। तैमूर खान को अब इस पर गुस्सा आ रहा था। छोड़ो मुझे पागल लड़की, सारे कपड़ों का सत्यानाश कर दिया तुमने। तैमूर इसके बाजों से पकड़कर झटके से इसे खुद से दूर करते हुए बोला, क्यों ना करूं इससे शादी? तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? हटो मेरे रास्ते से। उसने सुंबल को हाथ से पकड़कर पीछे की तरफ धकेला। इससे पहले कि वो गाड़ी में बैठता इस वक्त एहतशाम खान वहाँ चले आए। तैमूर खान, तुम अच्छा नहीं कह रहे, एक बार फिर से सोच लो। मैंने सोच लिया दाजी, मैं शादी करूँगा तो सिर्फ़ और सिर्फ सनम खान से। तुम गलत कह रहे तैमूर खान, वो हमारा बच्चों का कातिल की बेटी है। हाँ, कातिल की बेटी है, लेकिन वो खुद तो कातिल नहीं है ना। ठीक है, फिर जब तुमने फैसला कर लिया तो फिर जान लो तुम इस लड़की को शादी करके इस हवेली में नहीं लाएगा। इस लड़की का इस हवेली में कोई जगह नहीं बनता। सुना तुमने? एहतशाम खान गुस्से से चीखे। तैमूर खान उदासी से मुस्कुराते हुए बोला, आप मुझे कभी समझ ही नहीं पाए दाजी। मैं जानना चाहता था कि आप मेरे साथ ऐसा ही करेंगे। ठीक है, मैं फिर नहीं लाऊंगा अपनी बीवी को यहाँ आपकी हवेली में। बल्कि नहीं, मैं खुद ही ये हवेली छोड़कर जा रहा हूँ। आप खुश रहें आप। ये कहकर तैमूर खान गुस्से से भरा गाड़ी में बैठा और ज़मान खान के इलाके की तरफ रवाना हुआ। पीछे एहतशाम खान बेयकीन सा खड़ा यही सोच रहा था कि आखिर तैमूर खान को अचानक हो गया है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। तैमूर ने गाड़ी ज़मान खान की हवेली के बाहर ही रोक दी। वो गाड़ी से बाहर निकला और ड्राइवर को वहीं इंतज़ार का कहता खुद आगे बढ़ गया। वो हवेली के गेट के बाहर खड़ा ज़मान खान की हवेली को देखकर बेख्तियार मुस्कुराया था। उसे याद आया था कि एक बार पहले भी वो यहाँ बेखबरी में आ चुका है, लेकिन तब वो नहीं जानता था कि ज़मान खान असल में कौन है। आज उसे पता था कि ज़मान खान कौन है, लेकिन फिर भी वो यहाँ आया था इसके दरवाजे पर सवाली बनकर। हवेली में दाखिल होने से पहले ही गेट पर मौजूद मुहाफ़िज़ों ने उसे रोक लिया था, यह जानकर कि वो सरदार तैमूर का खान है। मैं सरदार तैमूर खान है, आप जाकर ज़मान खान को ख़बर दें कि मैं उनसे मिलने आया हूँ। एक मुहाफ़िज़ ने जाकर ज़मान खान को ये ख़बर सुनाई तो जैसे इसे यकीन आया, वो फ़ौरन वहाँ से चला आया और मुहाफ़िज़ों को डांटा कि उन्होंने उसे क्यों रोका। ये हमारा मेहमान है, आओ बच्चे अंदर आओ। ज़मान खान ने उसे बाजू बाँ किए। ज़मान खान को देखकर तैमूर मुस्कुराया और ज़मान खान के गले लग गया। ज़मान खान उसे बैठक की बजाय हवेली के अंदर ले आया जैसे वो इनका बहुत अपना हो। शेरजान और अनम हैरान रह गए जब उन्होंने तैमूर खान को यहाँ देखा। इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तैमूर खान यहाँ कैसे? खुद के ज़मान खान भी इसकी आमद की वजह से नहीं जानता था, लेकिन वो इसके घर आया था और इतना बुरा नहीं था कि घर आए मेहमान को धक्के देकर बाहर निकालना चाहे, वो इसका जानी दुश्मन ही क्यों ना हो। इनकी रवायात में था कि अगर दुश्मन भी घर आ जाए तो इसके साथ मेहमानों जैसा सलूक किया जाता है, और वो लोग अपनी रवायात को बहुत अच्छे तरीके से निभाते थे। इस वक्त भी तैमूर खान इनका दुश्मन नहीं बल्कि मेहमान ही था। तैमूर खान की निगाहें इधर उधर भटक रही थी। शायद वो सनम खान को तलाश कर रहा था, और वो जिसे तलाश कर रहा था वो दुनिया माफिया से बेखबर अस्तबल में खड़ी बहादुर को नहलाने के बाद इसकी मालिश कर रही थी। तैमूर खान बड़ी हिम्मत करके शेरीजान को देखकर बोला, अच्छा हुआ आप भी यहाँ मौजूद हैं, मुझे आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। कैसा ज़रूरी बात? बोलो, हम सुन रहा है। शेरीजान ज़मान खान के पास जगह संभालते हुए बोली।
जबकि अनम वहीं दरवाजे के पास खामोश सी खड़ी थी। तैमूर बेचैनी से उंगलियां चटखाते हुए बोला, मैं आप लोगों के पास एक गुजारिश लेकर आया हूँ, बल्कि नहीं, एक इल्तिजा लेकर आया हूँ। कैसा गुजारिश बच्चे? मैं चाहता हूँ कि हमने आप लोगों के साथ बहुत बुरा किया, और मैं ये भी जानता हूँ कि मुझे यहाँ इस वक्त अपने सामने बैठे देखकर आप लोगों को बहुत गुस्सा भी आ रहा होगा, लेकिन मैं बहुत सोच समझ के और बहुत मुश्किलों से यहाँ पर आया हूँ। बच्चे सीधे से बोलो, क्या कहना चाहता है? हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। खान जी, मैं चाहता हूँ कि 20 सालों से चलती उस दुश्मनी को ख़त्म कर दूँ। क्या? सलमान खान के साथ साथ श्रीजान और अनम को भी हैरत का शदीद झटका लगा था। इन सब को यूँ हैरत ज़दा होते देखकर तैमूर होले से मुस्कुराया। मैं जानता था कि आप लोगों का यही रिएक्शन होगा। आप लोग जानते हैं कि मेरे इस फैसले से मेरे घर वाले भी मुझसे खफा हो गए हैं, यहाँ तक कि दाजी भी। वो सब नहीं चाहते कि ऐसा करूँ, लेकिन मैं ऐसा करना चाहता हूँ। मैं 20 सालों से चलती इस दुश्मनी को अब ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि इस दुश्मनी में सिवाय खून खराबे के और कुछ भी हासिल नहीं होता। मैं अपने ख़ानदान को नाराज़ करके यहाँ पर आया हूँ। मुझे यकीन है कि आप लोग मुझे मायूस नहीं लौटाएंगे, वरना मैं कहीं का भी नहीं रहूँगा। तुम कैसे करेगा इस दुश्मनी को ख़त्म? इसका सवाल तैमूर खान के होंठों पर मुस्कुराहट में खेल गया। मैं दोबारा से आप लोगों के साथ रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ। मैं आपकी बेटी सनम खान से शादी करना चाहता हूँ। तैमूर खान ने पूरी बात इनके गोश्त गुजार दी कि वो घर वालों को नाराज़ करके इनकी ख्वाहिश रद्द करते हुए यहाँ पर आया है, इस उम्मीद में कि वो लोग उसे मायूस नहीं लौटाएंगे। सलमान खान को समझ में नहीं आ रहा था कि वो बोले तो क्या। हालांकि वो खुद भी यही चाहता था कि ये दुश्मनी अब ख़त्म हो जाए। अब जबकि तैमूर खान ने इसमें पहल की थी तो भला वो पीछे कैसे हट सकता था। लेकिन बच्चे, तुम सनम खान से क्यों शादी करना चाहता है? अगर रिश्तेदारी जोड़ना है तो कभी देखी किसी भी लड़की से तुम शादी कर सकता है। शेरीजान ने उसे हल पेश की, जिस पर तैमूर खान के लबों पर एक दिलफुराई तबस्सुम बिखर गया। आपने सही सवाल उठाया, तो फिर मैं आपको बता दूं कि मैं अपने दिल के हाथों मजबूर होकर यहाँ पर आया हूँ। हम समझा नहीं? तो मैं समझा देता हूँ आपको। मैं दरअसल आपकी बेटी सनम खान को पसंद करने लगा हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने अपने चचा की बेटी से रिश्ता तोड़ दिया है और सब घर वालों को नाराज़ करके यहाँ आया हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी बेटी की मोहब्बत में। ये सुनते सलमान खान तो बेचारा अपनी जगह से हिल भी न पाया और श्रीजान को तो शर्म ने आ घेरा था। अनम तो हैरत ज़दा रह गई कि कैसे बेबाकी से तैमूर खान ने इनके वालिदैन के सामने इसकी बहन के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया था, और वो फ़ौरन से वहाँ से भाग गए सनम को ये सब बताने। आप दोनों, तैमूर इन दोनों को यूँ देखकर बोला, आप दोनों बेशक वक्त ले सकते हैं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, बस जवाब हाँ में होना चाहिए। ज़माना खान ने कहा, ठीक है बच्चे, हम ज़रा कुछ बातचीत करके आता है और फिर सनम बच्चे से भी इसका मर्ज़ ये पूछना होगा, क्योंकि इसका बगैर तो हम कुछ भी नहीं कर सकता। जी खान जी, जो आपको मुनासिब लगे, मैं यहीं बैठा आप लोगों के जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ। आओ श्री जाना। सलमान खान श्री को देकर वहाँ से निकल गए। पीछे तैमूर खान दोनों हाथ सर के पीछे ले जाकर बांधे और फिर सोफे पर फैल कर बैठता वह सनम खान के जवाब को सोचता हंस रहा था। वो जानता था कि इसका क्या रिएक्शन होगा जब उसे पता चलेगा कि वो यहाँ आया इसका रिश्ता लेने। इसके चेहरे के एक्सप्रेशंस को सोच सोच कर उसे लुत्फ आ रहा था। काश कि वो उसे अपने सामने देख पाता जब वो अपने माँ बाप पर अपना गुस्सा उतार रही होगी। वो जानता था कि इसका जवाब इनकार ही होगा, लेकिन वो भी सरदार तैमूर खान था, इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकता था। अब उसे बेचैनी के साथ सनम के जवाब का इंतज़ार था। श्रीजान को तैमूर खान बहुत पसंद आया था। वह सलमान खान से बोली, हमको तो वो लड़का अच्छा लगा है और इसका जीत भी अच्छा है, तो तुम इसको हाँ बोल दो। मगर श्रीजान, मुझे अजीब सा डर लग रहा है, इन लोगों ने हमारा बच्ची के साथ कुछ गलत कर दिया तो? आप परेशान क्यों होता है? आप हमारा बच्ची को अच्छी तरह से जानता है ना? हाँ, तो खुदा पर भरोसा रखो। इस लड़का से बेहतर और कोई रिश्ता नहीं होगा हमारा बच्ची के लिए। वो लड़का सरदार है और इसका नीयत भी अच्छा है, तो फ़ौरन से हाँ कर दो। श्रीजान तो हाथों पर सरसों जमाए बैठी थी। वो चाहती थी कि जल्द से जल्द सनम खान की शादी हो जाए, क्योंकि वो इनकी हरकतों और आदतों के खिलाफ थी, क्योंकि वो सरदारी संभालना चाहते थे, जो कि श्री खान जान को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। हाँ, हम भी यही चाहता है, लेकिन सनम बच्चे से पूछे बगैर, इसका मर्जी जाने बगैर हम इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकता। ठीक है, फिर जाओ जाकर अपना बच्ची से बात करो। हम तो जानता है उसका जवाब ना ही होगा। श्रीजान खफा हो गई थी। वो चाहती थी कि बस सलमान खान हाँ कर दे और सनम खान की शादी तैमूर खान से हो जाए, क्योंकि वो सनम खान को एक घरेलू लड़की के तौर पर देखना चाहती थी। सनम बहादुर की मालिश कर रही थी जब अनम ढूंढते हुए वहाँ भागे अजय। उसे यूं हाँफते देखकर सनम ने पूछ लिया, क्या हुआ, क्या क़यामत आ गई? वो हाँफते हुए बोली,
तुम यहाँ खड़ी हो, जानती भी हो कि अंदर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तुम ही बता दो। वो बहादुर को मालिश करती हुई मसरूफ सी बोली। तुम्हें पता है अंदर कौन आया है? कौन? जवाब एक लफ्ज़ ही आया था। अगर तुम्हें पता चलेगा ना तो झटका लग जाएगा तुम्हें। कपड़ा हाथों में लिए सनम खान ने पकड़कर उसे देखा और फिर मुस्कुराकर बोली, ऐसी कौन सी हस्ती आ गई कि सनम खान को झटका लगेगा? चलो अब बता दो। ये कहकर सनम दोबारा से बहादुर की मालिश करने के लिए मुड़ी। सरदार तैमूर खान आया है। क्या? सनम को तो झटका ही लगा था, वो फौरन से पलटी। क्या कहा अभी तुमने? कौन आया है? सनम को जिसके अपनी समातों पर यकीन नहीं आया था। देखा, लग गया ना झटका। अब तो मजीद झटके पे झटके लगेंगे जब तुम आगे सुनोगी तो। सरदार तैमूर खान बाबा के पास इसलिए आए हैं कि वो 20 सालों से चलती ये दुश्मनी ख़त्म करना चाहता है। और तो और उसने बाबा से बात करके तुम्हारा रिश्ता ही मांग लिया है। और पता है बाबा ने क्या कहा? उसने कहा कि वो तुमसे प्यार करता है। ये कहकर अनम हंस दी। वाह यार, कितना रोमांटिक बनता है। व्हाट द हेल, क्या बकवास है ये? सनम ने गुस्से में हाथ में पकड़ा फेंक दिया। मैं सच कह रही हूँ यार, वो अपने घर वालों से लड़ झगड़ कर इधर आया तुम्हारा रिश्ता लेने, क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत कर बैठा है। तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है ना, जो ऐसी वैसी बकवास किए जा रही हो। यार मैं तो वही कह रही हूँ जो तैमूर खान ने बाबा से कहा। मुझे क्यों बातें सुना रही हो? जाकर इसको सुनाओ जो अपना प्रपोजल लेकर आया इधर। इसकी तो सनम दांत पीसते हुए बोली, मैं इस चालाक लड़के को छोड़ूंगी नहीं। क्या चल रहा है आखिर इसके शातिर दिमाग में? इतना तो मैं जानती हूँ कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन ये लड़का पानी, जगह और आदत से टस से मस नहीं होगा तो फिर ये सब। मेरा दिमाग घूम रहा है। तभी अनन्या ने सलमान खान को वहां आते देखा तो वो सनम को कोहनी मारते बोली, सुनो, पापा जान इधर ही आ रहे हैं। सनम ने मुड़कर सलमान खान की तरफ देखा जो इसकी तरफ आ रहे थे। शायद इसकी रजामंदी जानने। वो जान चुकी थी कि इसके बाबा को इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं है, तभी तो वो बस इसकी मर्जी जानने आए हैं। वरना अगर तैमूर खान को इनकार करना होता तो वो इसी वक्त वहीं पर ही इनकार कर देते। क्या मुसीबत है, मर जाओ तुम तैमूर खान। तुमने भी वैसा ही खेल खेला जैसे मैंने तुम्हारे साथ खेला था। मैंने तुम्हारी माँ को इस्तेमाल किया तो तुमने बदले में मेरे बाबा जान को इस्तेमाल किया। सनम धीरे धीरे तैमूर को गालियों से नवाजने लगी। बहुत खबीस इंसान हो तुम। सलमान खान के पीछे शेरी जहाँ भी वहाँ चली आई। अनम को देखते हुए सलमान खान गोया हुआ है। हम जानता है कि अनम ने तुमको तैमूर खान की आमद के बारे में बता दिया होगा। जी सरदार बाबा। तो तुम ये भी जानता होगा कि इसके यहाँ आने का क्या मकसद है? जी बाबा जान चुकी हूँ। तो फिर बच्चा, क्या जवाब है तुम्हारा? वो हमसे जवाब लिए बगैर नहीं जाना चाहता। सनम अपने बाप को देखने लगी जो बहुत पूरी उम्मीद था कि इसका यूँ जवाब हाँ में ही होगा। बाबा, क्या आप इस रिश्ते पर खुश हैं? इस सवाल पर सलमान खान ने गहरी सांस दी। सच पूछो तो बच्चे, हाँ, हम इस रिश्ते से बहुत खुश हैं। हम चाहते हैं कि सालों से चलती आ रही इस दुश्मनी को ख़त्म होना चाहिए और एक बार फिर से हमारा रिश्तेदारी बन जाए। और यही काम तैमूर खान करने आया। उसने पहला कदम खुद बढ़ाया और हम चाहता है कि हम इसके एक कदम के बदले 10 कदम बढ़ाएं। बाप को इतना पुरुमीद और खुश देखकर सनम बेबसी से बोली, लेकिन बाबा, आपको इस शख्स के बारे में ठीक से नहीं पता। वो एक नंबर का शातिर दिमाग आदमी है। वो बहुत बुरा है बाबा जान। बच्चे, हम जानता है कि बुराई और अच्छाई और इंसान में होता है, लेकिन इंसान को अच्छा बनने के लिए एक पल भी काफ़ी होता है। ये इसका बड़ापन है कि वो हमारा घर, हमारा चौखट पार करके हमारा बच्ची का रिश्ता लेने आया है और इसको इनकार करने का सोचते हुए भी हमको बहुत बुरा लग रहा है। पापा जान, मुझे उसकी नीयत ठीक नहीं लग रही। हम बच्चे, कौन होता है किसी की नीयत को जानने वाला? सॉरी पापा जान, मैं उससे शादी नहीं कर सकती। इसके जवाब पर जहाँ सलमान खान मायूस हुआ था, वहीं श्री जान को तो इस पर गुस्सा ही आ गया था। तुम तो बाल का खाल ही उतार देता है, क्या बुराई है इसमें? अच्छा भला लड़का है, अपने इलाका का सरदार है और तो तुम्हारा अपना घर वालों से लड़कर इधर आए। तुम्हें के नाशुक्री कर रहा है। इतना अच्छा लड़का और रिश्तेदार कहाँ से मिलेगा तुमको? माँ की बात सुनकर सनम हंसती। सीरियसली मोरे, वो आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। वो ये सब ड्रामेबाजी करे ताकि आप लोगों की अटेंशन पा सके, और वही हुआ भी है। बच्चे, एक बार फिर से सोच लो। मैंने सोच लिया बाबा जान, मुझे नहीं करनी इस इंसान से शादी। ठीक है बच्चे, जैसा तुम चाहो। सलमान खान वहाँ से चल दिया। सनम ने महसूस किया कि इसके बाबा इसके फैसले से बहुत मायूस और उदास थे। शायद वो इससे जवाब की तवक्को नहीं कर रहे थे। श्री जान भी खफा होती वहाँ से चली गई। सनम कंधे उचकाकर बोली, इन लोगों को क्या हो गया यार? आखिर वो इस इंसान की चालाकी और मुकाली को समझ और देख क्यों नहीं पा रहे? सनम की बात पर अनम ने चोट करते हुए कहा, क्योंकि बहना, वो तुम्हारी तरह नजूमी थोड़ी ना है कि इंसान को देखते ही बता दे कि वो कैसे। ये सारी गर्ज तो तुम में है ना। बहुत मायूस किया तुमने मोरे और बाबा जान को। अनब भी उसे बातें सुनाकर वहां से चली गई। हाँ,
सनम का तो मुंह ही खुल गया था। ये छोटी भी मुझे बातें सुनाकर चली गई। आखिर इस शख्स में ऐसी कौन सी खास चीज़ देखनी जो सब इसके दीवाने बन गए। वो मुंह बनाते अपने बहादुर की पेशानी पर हाथ फेरते हुए कह रही थी, यार तुम तो समझते हो ना, वो इंसान वैसा नहीं जैसे वो मुर्रे बाबा जान को दिखाने की कोशिश कर रहा है। मुझे तो लगता है कि इसके पीछे भी इसकी बहुत बड़ी प्लानिंग होगी। सनम की बातें सुनकर बहादुर हनहनाया जैसे वो भी सनम की बात पर मुत्तफिक था। उसे देखकर सनम मुस्कुराई। मैं जानती थी कोई मेरा साथ दे ना दे तो मेरा साथ ज़रूर देगे। सनम ने झुककर इसकी पेशानी पर बूसा दिया। सलमान खान और शेरी जान को कमरे में दाखिल होते देखकर तैमूर खान जल्दी से उठ खड़ा हुआ। इनके पीछे अनम भी दाखिल हुई। क्या कहा इसने? तैमूर खान ने बेसब्री से पूछा। बच्चे, हमको माफ़ कर देना। उसने इनकार कर दिया। ये सुनकर तैमूर खान का खिला हुआ चेहरा एकदम से मायूसी में बदल गया। ओह, तो इनकार कर दिया। लेकिन आप प्लीज़ एक बार फिर से इनसे कहें कि क्या पता वो मान जाए। वो नहीं मानेगी बच्चे, हम इसकी ज़िद से अच्छी तरह वाकिफ़ है। अगर वो एक बार फैसला कर दे तो फिर इसका कोई भी फैसला नहीं बदल सकता। हाँ जी, आप इससे कहें कि वो सच में मुझ पर भरोसा करें, मैं बहुत बदल गया हूँ। मैं इसे बहुत खुश रखूँगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। बच्चे, हमको तो तुम पर भरोसा है, मगर हम क्या कर सकता है? सलमान खान ने हथियार डाल दिए थे। तभी सनम खान वहाँ दाखिल हुई। उसे देखकर तैमूर खान के लबों पर तबस्सुम बिखर गया। वो यकटुक सामने खड़ी सनम को देखे गया जैसे वो बरसों से अपनी प्यासी निगाहों को सैराब कर रहा हो। सनम खान इसकी निगाहों से कंफ्यूज हो रही थी। उसे देखकर मुस्कुराते बोला, बहुत वक्त हो गया तुम्हें देखे सरदार की बेटी। इसका ये लबो लहजा सनम को शॉक्ट कर गया था। उसे यूं हैरत ज़दा होते देखकर तैमूर की मुस्कुराहट और गहरी हुई। सनम कुछ सोचते हुए बोली, ठीक है बाबा जान, मैं इससे शादी के लिए तैयार हूँ। क्या सच में? तैमूर खान, शेरीजान, अनन और ख़ासकर तैमूर को बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। लेकिन बाबा जान इससे कहें कि एक बात याद रखें, मुकाबला हमेशा बराबरी का ही होता है। अगर ये मुझे एक सुनाएगा तो मैं इससे 10 सुनाऊंगी। तैमूर हंसते हुए बोला, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है सरदार सादी। तुम्हारी इस आदत ने ही तो मुझे तुम्हारा गर्विदा बना लिया। मुझे अपने टक्कर की ही बीवी चाहिए थी, जो बहादुर और किसी से भी न डरती हो, जिसमें बहुत सारी खूबियाँ हों, और जो सारी खूबियाँ मैं अपनी बीवी में देखना चाहता हूँ वो तुम में मौजूद है। बहुत अच्छी गुजरेगी। वैसे खान जी, आपकी बेटी की मेरी ज़िंदगी में आने से हमारी ज़िंदगी गुलो गुलजार बन जाएगी। इसका ये लबो लहजा सनम खान को झटके पे झटका लगा रहा था। वैसा तो हरगिज़ भी नहीं था। फिर ये काया पलट कैसे हो गई? मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त क्या सोच रही हो, लेकिन सच यही है, मैंने तुम्हें अपना असीर बनाया, लेकिन तुम्हारी बहादुरी ने मुझे तुम्हारा असीर बना लिया और मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। और अब मैं तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर पा रहा। जब से तुम गई हो मैं न चैन से खा रहा हूँ, ना ही सो पा रहा हूँ। ऐसी बेबाक बातें, और वो भी अपने वालिदैन और बहन के सामने। सनम खान का चेहरा शर्म से, हया से लाल हो गया था। उसने खसियानी होकर अपने वालिदैन को देखा जो सर झुकाए मुस्कुरा रहे थे। वो ज़रा गुस्से से बोली, बस बहुत हुआ। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? नहीं तो सच बताने में कैसी शर्म? तुम्हारे वालिदैन को बताना चाह रहा हूँ कि मुझे तुमसे कब और कैसे मोहब्बत हुई, किस वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। तैमूर उसे अपनी निगाहों के हिसार में लेते सलमान खान से बोला, वैसे खान जी, शादी के बाद हमारी बहुत सी लड़ाइयाँ होने वाली हैं। ये जान लें आप, और मैंने सुना है कि जहाँ लड़ाइयाँ होती हैं वहाँ बहुत सारा प्यार भी होता है। बकवास बंद करो तुम अपनी। पापा जान के सामने क्या और फूल बके जा रहे हो? सनम खान की बस हुई थी। वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो गया था और माँ बाप के सामने ऐसी गुफ्तगू से उससे शर्म से पानी पानी कर रही थी। इससे पहले कि वो दोनों लड़ पड़ते, सलमान खान ने श्रीजान से कहा, श्रीजान, सनम को ले जाओ और इसे तैयार करो। हम इन दोनों का अभी और इसी वक्त निकाह पढ़ाना चाहता है। क्या? अभी और इसी वक्त? सनम हैरान हुई। हाँ बच्चे, लेकिन पापा ये तो अभी सिर्फ रिश्ता लेने आया था ना, फिर ये निकाह। बच्चे, निकाह में देर नहीं करना चाहिए, जितना हो सके जल्दी कर देना चाहिए। चलो बच्चे जाओ, शाबाश, तैयार हो जाओ। हम तब तक मौलवी साहब और गवाहों का बंदोबस्त करता है। श्रीजान अनम के साथ सनम को लेकर वहाँ से चली गई। थैंक यू सो मच खान जी। तैमूर खान सलमान खान के गले लग गया था। अरे बच्चे, ये क्यों करता है? शुक्रिया, तुम हमारा बच्ची की तरह है। हमने तो उसी दिन ही तुमको अपना बच्चा बनाया था जब तुमने हमारा जान बचाया था। तैमूर मुस्कुराया। शिरजान ने सनम के निकाह के लिए खूबसूरत रवायती पख्तूना वाला सूट निकाला था। चलो ये लो, जाकर नहाकर पहन लो। ये क्या है? ये कपड़ा है और क्या? इतना हैवी मुझसे नहीं पहना जाएगा ये पहना हुआ। कोई हल्का फुल्का सा सूट दे दे, वही पहन लूँगी। तुम अपना निकाह में जा रहे ना कि किसी का मैयत में। चलो पहनो इसको। श्रीजान ने उसे डांटा। मोरे
सनम की बेबस हुई थी। अच्छा लाए दे, पहन लूँगी एक गले का तोक। वो श्री चांद के हाथ से सूट छीनती वाशरूम में घुस गई। थोड़ी देर के बाद वो इसी सूट में मलबूस थी। वाह माशाल्लाह, प्यारा लग रहा है तुम इस सूट में। श्री चांद इसकी बलाई लेती इसका माथा चूम गई। मेरा दम घुट रहा है इस सूट में। बहुत प्यारी लग रही हूँ तुम इसमें। और चलो मैं तुम्हारा हल्का फुल्का मेकअप करती हूँ। हाँ, जब तक तुमने इसका मेकअप करो, हमारे मेहमान के लिए चाय पानी का बंदोबस्त करता है। श्री चांद वहाँ से निकल गई। कोई ज़रूरत नहीं है मेकअप की, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। कितनी ज़िद्दी हो तुम सनम खान। तुम्हारा निकाह हो रहा है और तुम पहली लड़की हो जिसे अपने निकाह की बिल्कुल भी खुशी नहीं है। हाँ, कौन सा मेरी मर्ज़ी और पसंद के बंदे से शादी हो रही है। अच्छा ना, आप छोड़ दो इन बातों को। चलो आओ मेकअप करती हूँ तुम्हारा। सनम अनम उसे खींच खांच कर ज़बरदस्ती सिंगार माइस के पास ले और वो उसका मेकअप कर रही थी। मैं ज़िंदगी में पहली बार ये होते देख रही हूँ कि लड़का रिश्ता लेकर आया तो रिश्ते की बजाय लड़की के वालिदैन डायरेक्ट इसका निकाह ही कर देते हैं। चुप करके बैठ जाओ सनम खान, बहुत बोलती हो। मुझे मेकअप करने दो। पूरा मेकअप करने के बाद सनम खुद को आईने में देखते हुए बोली, ये क्या इतना मेकअप थोप दिया तुमने? मेकअप की दुकान लग रही हूँ मैं पूरी। तुम ना बस यही बातें करती रहना, हद है वैसे। अन्ना बदमज़ा हुई। यार कम से कम खुद के लिए ना सही तैमूर भाल के लिए सच सवर जाओ। तुम्हें यूं देखेंगे तो तुम पर फिदा ही हो जाएंगे। क्या कहा तैमूर भाई? सनम उसे से गुस्से से घूरने लगी। ये तुम्हारा भाई कब से हो गया? जब से उन्होंने तुम्हारा रिश्ता मांगा। वैसे आपस की बात है, तैमूर भाई कितने रोमांटिक है ना। इसे रोमांटिक बंदा नहीं बल्कि बेशर्म बंदा कहते हैं। अनम को इसका जवाब पसंद नहीं आया था। वैसे मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि कोई वो सरदार है। लगता है कि इन्हें अमेरिका की हवा लग गई है, तभी तो मोरे बाबा के सामने तुझसे ऐसे रोमांस छाड़ रहे थे। मैं तो सोच रही हूँ कि तुम जब इनके साथ अकेली होगी तब वो क्या करेंगे। मुझे तो सोच सोच कर ही शर्म आ रही है। कोई इतना रोमांटिक कैसे हो सकता है? और उन्होंने तुम्हें ऐसा क्या देखते हैं कि तुम्हारे पीछे पागल ही हो गए। सनम ने अब उसको धप रसीद की। बहुत ज़बान चलने लगी है तुम्हारी। पापा से कहना पड़ेगा वो तुम्हारे लिए भी कोई लड़का ढूंढ ही दें। ठीक है, फिर कह दो। लेकिन मैं बता रही हूँ मुझे ऐसा वैसा लड़का नहीं चाहिए, शर्मीला और बेवकूफ़ सा। मुझे ना तैमूर भाई जैसा रोमांटिक बंदा चाहिए। पास आ जाओ तो मनम। सनम ने उसे वार्न किया मगर उसे कहाँ फ़र्क पड़ने लगा था। आखिर बहन किसकी थी? सलमान खान ने इलाके के चंद मुअज़्ज़िज़ीन को निकाह पर बुलाया। इन्हें यह जानकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि सरदार तैमूर खान ने इस दुश्मनी को ख़त्म करने में पहल की। और तो और उसने सरदार सलमान खान के साथ रिश्तेदारी भी जोड़ ली। इनकी बेटी के साथ निकाह करके इन दोनों का निकाह हो चुका था। सनम सलमान खान से सनम तैमूर खान बन गई थी। इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन और ज़मान ने उठकर तैमूर खान को गले से लगाकर मुबारकबाद दे रहे थे और तैमूर खान बड़ी खुश दिली से सबकी मुबारकबाद वसूल कर रहा था। निकाह होते ही तैमूर खान ने रुखसती की इजाज़त चाही। सलमान खान सनम को लेने चला आया। चलो बच्चे, रुखसती का वक्त हुआ चाहता है। सनम बाप के सीने से लगकर रोती। बच्चे रोता क्यों है? तुम एक घर से दूसरे घर जा रहा है। हमको तैमूर खान पर पूरा भरोसा है, वो तुमको बहुत खुश रखेगा। पापा जान आप कह रहे हैं तो मैं इस शख्स पर भरोसा कर लेती हूँ। बेटी की इस पर फर्माबरदारी पर सलमान खान को उस पर टूट कर प्यार आया। मेरा बच्चा खुदा से दुआ है कि तुम्हें हमेशा खुश रहे। सलमान खान ने मोहब्बत से इसका माथा चूम लिया। हमेशा खुश रहो बच्चे। चलो अपना माँ और बहन से भी मिल दो। मोरे। सनम माँ के सीने से जा लगी। बेटी की रुखसती का शोर सोचकर श्री जान की आंखें नम हुई थी। वो अपने आंसू साफ करते हुए बोली, बच्चे अब तुम्हारा शादी हो गया, अब तुम्हारा वही असल घर है। अपना और अपने शोहर का हमेशा ख्याल रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, बस गुजारा करते रहना। इसी में तुम्हारा और हमारा भलाई है। तुम अपना बाप का फर्माबरदार बेटी है। हमको कभी भी शिकायत का मौका मत देना सनम खान। मोरे, फिर से आपने नसीहतों की पटारी खोल दी। मैं रुखसत होकर जा रही हूँ, ना कि महाजे जंग पर। ये कहती वो अनम को गले लगा गई। छोटी अपना बाबा जानकर मोरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अनम ने भीगी आंखों से सर हाँ में हिलाया। आओ बच्चे। सलमान खान इसके सर पर हाथ रखते इसे खुद से लगाए तैमूर खान के पास ले आया। सोफे पर बैठा तैमूर खान इंतकाल मुंतज़िर था। जब वो चारों वहाँ आए तो वो जल्दी से उठ खड़ा हुआ। बच्चा ये रहा तुम्हारा अमानत। सलमान खान ने सनम को इसके पास ला खड़ा किया। सनम खान ने सर उठाकर अपने करीब खड़े तैमूर को देखा जो उसे ही देखे जा रहा था। सनम के देखने पर वो मुस्कुराया। अनम एक बैग ले आई थी जिसमें सनम के कुछ कपड़े और ज़रूरत की चीज़ें थी। तैमूर ने वो बैग अनम से लेकर गाड़ी में रखवाया। अच्छा खान जी, अब इजाज़त दें, हम चलते हैं। तैमूर खान ने उसे गले से लगाया। वो इनसे अलग होते हुए बोला, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करना, मैं आप लोगों की बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल करूँगा। ये मेरा आप लोगों से वादा है। ठीक है बच्चे, खुदा की अमान में। सलमान खान ने नम आंखों से उन्हें अलविदा किया। तैमूर खान का हाथ पकड़े गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठते उसने ड्राइवर को चलने का हुक्म दिया।
गाड़ी वहाँ से रवाना हो चुकी थी। सनम ने मुड़कर देखा, इसकी वालदा और अनम रो रही थी। सनम को बहुत तकलीफ हो रही थी, वो इनसे दूर जा रही थी। इसका हाथ अभी भी तैमूर खान की गिरफ्त में था। सनम खान ने अपना हाथ तैमूर की गिरफ्त से छुड़ाना चाहा तो उसके हाथ पर मजीद गिरफ्त सख्त करता उसे अपनी तरफ खींच गया। वो जो जरा फासले पर बैठी थी, उसे यूं खींचे जाने पर अपना तवाज़ुन बरकरार न रख पाती उसके सीने से जा लगी। तैमूर खान ने दाएं हाथ से इसका हाथ पकड़कर अपनी गोद में रखा हुआ था और अब बाएं हाथ से उसके कंधे पर फैला उसे खींचकर अपने करीब कर गया। इसकी इस हरकत पर सनम गुस्से से बोल उठी, ये क्या बदतमीज़ी है, छोड़ो मुझे। सनम ने गाड़ी चलाते ड्राइवर को देखते दांत पीसकर अपने करीब बैठे तैमूर खान को देखकर बोला। तैमूर इसकी हालत से अब खूब महजूज हो रहा था। मेरे छूने पर शर्मा रही हो या गुस्सा आ रहा है, या फिर ड्राइवर से डर लग रहा है? डरो मत, वो अपना पूरा ध्यान ड्राइविंग पर रखे हुए। वह इसके कंधे पर बाजू रखी उसे मजीद अपने करीब करते हुए बोला, वैसे पहली बार तुम इंसान की बच्ची लग रही हो, इस लिबास में बहुत खूबसूरत लग रही हो। उसे प्यार लुटाती निगाहों से देखता वो कह रहा था। इसकी इन्हीं निगाहों से सनम कन्फ्यूज़ हो रही थी। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो, मैं अनकंफर्टेबल महसूस कर रही हूँ। सनम ने इसकी गिरफ्त से अपना कंधा और हाथ छुड़ाना चाहा लेकिन नाकाम रही। लेकिन मैं तो बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, और वैसे भी अब क्या शर्माना, शोहर हूँ मैं तुम्हारा, इतना तो हक रखता हूँ ना। वैसे पहली बार तुम्हारे चेहरे के ये बदले तासुरात देखकर मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। सनम ने उसको खुद को इसकी गिरफ्त से छुड़ाने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रही। थक हार कर वो खामोश होकर बैठ गई। उसे यूँ अपने सामने हिम्मत हारते देखकर तैमूर होले से हंस दिया। उसने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और किसी का नंबर डायल करके मोबाइल कान से लगा लिया। अब वो दूसरी तरफ से कॉल रिसीव करने का इंतज़ार कर रहा था। हाँ हेलो तैमूर, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार, तुम बताओ। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे आज ये कॉल कैसे कर ली? सब खैरियत है ना? खैरियत तो नहीं है। क्यों, क्या हुआ? सनम उसे ही देख रही थी जो अपने दोस्त से बात कर रहा था। चूँकि कॉल स्पीकर पर लगी थी, वो इसकी सारी गुफ्तगू सुन रही थी। यार फरहान, मुझे ये कहना था कि मेरा शहर में जो घर है वहाँ मैं पहले जहाँ रहता था, क्या तुम इसकी सफाई करवा दोगे? मुझे कुछ दिन वहाँ रहना है। क्यों, क्या हुआ? क्या दादी ने तुम्हें हवेली से निकाल दिया? हाँ शायद ऐसा ही कुछ है। तुम बताओ कि मेरा काम हो जाएगा ना, या फिर मैं किसी होटल चला जाऊँ? अरे यार कैसी बातें कर रहा है, मैं कर दूंगा ना, तो फिक्र ना कर। थैंक्स यार, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, आजा, यहाँ फिर बात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़। कॉल डिस्कनेक्ट करके तैमूर ने गर्दन मोड़ के सनम को देखा जो उसे ही देख रही थी। हैरान मत हो, मैं तुम्हें अपने साथ शहर लेकर जा रहा हूँ। मेरा वहाँ पर अपना घर है, क्योंकि हवेली में तुम्हें कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो इसलिए मजबूरन मुझे ये सब करना पड़ रहा है। सनम कुछ ना बोले, बस गर्दन मोड़कर भागते दौड़ते मुनासिर को देखने लगी। पहले ज़रा हवेली चलना, तैमूर ने ड्राइवर से कहा। यह सुनकर सनम ने चौंक कर तैमूर को देखा। फिक्र ना करो, मैं अपना कुछ ज़रूरी सामान लेने वहाँ जा रहा हूँ। तैमूर अपने हाथ में पकड़े इसके हाथ को दबाते मुस्कुराकर बोला। गाड़ी हवेली में दाखिल हुई थी। तैमूर की गाड़ी देखकर पलवशा ने आकर खाने की मेज़ पर बैठे सभी लोगों को बताया कि तैमूर वापस आ गया। सभी बाहर निकल आए थे। तैमूर गाड़ी से निकलकर दूसरी तरफ आया और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसने हाथ आगे बढ़ाया। अंदर बैठी सनम ने इसका बड़ा हुआ हाथ देखा, फिर सोचकर उसने अपना हाथ इसके हाथ पर दे दिया। तैमूर के साथ सनम खान को देखकर वो सभी लोग समझ गए कि तैमूर ने वो करके दिखाया जो कह गया था। सनम का हाथ पकड़े वो इन लोगों के पास चलाया। एहतशाम खान का खून खौल उठा था और तैमूर के पहलू में अपनी जगह सनम खान को देखकर सुंबल पर कशी के दौरे पड़ने लगे। वो बेतहाशा रो रही थी और अमरीना उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। तैमूर सनम का हाथ पकड़े इन सबको इग्नोर करता उसे अपने कमरे में ले आया। उसने सनम को बेड पर बिठाया, खुद वार्डरोब खोलकर एक सूटकेस निकालकर बेड पर रखा। अब वो अपने इसमें कपड़े और ज़रूरत की चीज़ें रख रहा था। सनम बगैर इसके बेडरूम की एक एक चीज़ को देख रही थी, क्योंकि वो पहली बार इसके बेडरूम में आई थी। उसे यूँ अपने कमरे को देखता पाकर तैमूर मुस्कुराया। सूटकेस बंद करते उसे उठाते हुए बोला, आओ चले। सनम के साथ बाहर निकला, लेकिन कुछ याद आने पर वापस पलटा और मेज़ की दराज से अपने रिवॉल्वर भी उठा लिया। आओ चलते हैं। वो एक हाथ से सनम का हाथ पकड़े, दूसरे से हाथ में सूटकेस उठाए नीचे चला आया था। सनम को तैमूर खान के पहलू में देखकर संभल पागल हो गई थी। वो तेज़ी से इस पर हमला करने के लिए झपटी थी। सनम इस हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। इससे पहले कि वो सनम पर हमला करती और उसे कोई चोट पहुंचाती, तैमूर खान सामने आ गया और संभल का बाजू पकड़कर उसे पीछे को धकेला, जिस पर वो गिरते गिरते बची। अब वो संभल पर गुस्से से चिल्ला रहा था, तुम पागल हो गई हो, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। हाँ, हम पागल हो गया, इसको जान से मार डालेगा। इसने तुमको हमसे छीन लिया, हम इसको मार डालेगा। सुंबर दोबारा से सनम को मारने के लिए उसकी तरफ लपकी थी, लेकिन इस बार तैमूर ने इस पर कोई रहम नहीं किया था। सुंबल का बाजू पकड़कर उसके सामने किया और एक जन्नाटेदार थप्पड़ गाल पर जड़ दिया।
सुंबल के साथ सनम और बाकी सब ने बेयकीनी से तैमूर को देखा। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे है मेरी बीवी पर हाथ उठाने की? अपनी हद में रहो तुम। किसी को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो मेरी बीवी पर हाथ उठाए। अगर आइंदा ऐसी किसी ने कोई जरूरत की तो तुम्हारे में हाथ तोड़ डालूंगा। तैमूर पास खड़ी सनम खान का हाथ पकड़ते बोला, ये अब कोई कैदी नहीं है कि इसके साथ ऐसा सलूक किया जाएगा, बल्कि ये सरदार तैमूर फजल खान की बीवी है। खबरदार जो इसकी तरफ किसी ने मेरी आंख से देखा भी तो जान से मार दूंगा मैं इसे। आई बात समझ में? आओ सनम। तैमूर सनम का हाथ पकड़े वहां से निकल गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैरत का मुजस्मा बने खड़े थे। यहाँ तक कि सनम को भी यही यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही तैमूर है जो इसकी जान का प्यासा था। क्या ये सच में बदल गया है? लेकिन दिमाग इसका साथ नहीं दे रहा था। सनम हमेशा से अपने दिल की बजाय दिमाग की सुनती थी। तैमूर के हवेली छोड़ जाने पर शहनाज ने बहुत वाविदा मचाया, उसे वापस लाने का कहा, लेकिन तैमूर ने किसी की भी न सुनी और सनम को लेकर हवेली से निकल गया।